اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ صبح کی روشنی میں سلطان ایوبی کے ان سواروں کا دستہ جو ان کے تعاقب میں گیا تھا گھوڑوں کے کھرے دیکھ کر روانہ ہو گیا۔ یہ بہت سے گھوڑوں کے نشان تھے جو چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ صبح سے پہلے صلیبیوں کی پارٹی لڑکیوں کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کا سفر رک گیا کیونکہ رات کے وقت وہ زمین کو نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر صلیبیوں نے سفر جاری رکھا۔ وہ آدھی رات کے وقت پڑاؤ کرنا چاہتے تھے، وہ بہت جلدی میں تھے۔ صبح کے دھندلکے میں صلیبی جو آدھی رات کے وقت رکے تھے چل پڑے۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کی پارٹی صبح کی روشنی میں روانہ ہوئی۔ میگنانا ماریوس نے عقل مندی کی تھی کہ وہ اونٹوں پر گیا تھا۔ اونٹ بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کرتا، رکے بغیر گھوڑے کی نسبت بہت زیادہ سفر کر لیتا ہے۔ اس سے میگنانا ماریوس کا سفر تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب انہیں لاشیں نظر آئیں۔ علی بن سفیان کے نائب نے بالیان کی لاش پہچان لی۔ اس کا چہرہ سلامت تھا۔ اس کے قریب اس کے 6 دوستوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ گدھوں اور درندوں نے زیادہ تر گوشت کھا لیا تھا۔ سوار حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خون بتاتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ اگر یہ بغاوت کی رات مرے ہوتے تو خون کا نشان نہ ہوتا اور ان کی صرف ہڈیاں رہ جاتی۔ یہ ایک معمہ تھا جو کوئی نہ سمجھ سکا۔ وہاں سے پھر گھوڑوں کے نشان چلے۔ سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ نصف میل تک گئے تو اونٹوں کے پاؤں کے نشان بھی نظر آئے۔ وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ سورج غروب ہوا تو بھی نہیں رکے کیونکہ اب مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا تھا جس میں ایک راستہ بل کھاتا ہوا گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے گزرنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ صلیبی اسی راستے سے گزرے تھے اور بحیرہ روم کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ٹیلوں کا علاقہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سے تعاقب کرنے والے نکلے تو رک گئے کیونکہ آگے ریتیلا میدان تھا۔ صبح کے وقت چلے تو کسی نے کہا کہ سمندر کی ہوا آنے لگی ہے۔ سمندر دور نہیں تھا مگر صلیبی ابھی تک نظر نہیں آئے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کھانے کے بچے کچھ ٹکڑوں سے پتہ چلا کہ رات یہاں کچھ لوگ رکے تھے۔ گھوڑے بھی یہاں باندھے گئے تھے۔ پھر یہ گھوڑے وہاں سے چلے۔ زمین کو دیکھ کر تعاقب کرنے والوں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دی۔ سورج اپنا سفر طے کرتا گیا اور آگے نکل گیا۔ گھوڑوں کو ایک جگہ آرام دیا گیا، پانی پلایا اور یہ دستہ روانہ ہو گیا۔ سمندر کی ہوائیں تیز ہو گئی تھیں اور ان میں سمندر کی بو صاف محسوس ہوتی تھی۔ پھر ساحل کی چٹانیں نظر آنے لگی۔ زمین بتا رہی تھی کہ گھوڑے آگے آگے جا رہے ہیں اور یہ بے شمار گھوڑے ہیں۔ ساحل کی چٹانیں گھوڑوں کی رفتار سے قریب آ رہی تھی۔ تعاقب کرنے والوں کو ایک چٹان پر 2 آدمی نظر آئے اور وہ اس طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے سمندر کی طرف اتر گئے۔ گھوڑے اور تیز ہو گئے۔ چٹانوں کے قریب گئے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ کئی جگہوں سے چٹانوں کے پیچھے جایا جا سکتا تھا۔ ایک آدمی کو چٹان پر چڑھ کر آگے دیکھنے کو بھیجا گیا۔ وہ آدمی گھوڑے سے اتر کر دوڑتا گیا اور ایک چٹان پر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے لیٹ کر دوسری طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ آیا۔ وہیں سے اس نے سواروں کو اشارہ کیا کہ پیدل آؤ۔ سوار گھوڑوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے چٹان تک گئے۔ سب سے پہلے علی بن سفیان کا نائب اوپر گیا۔ اس نے آگے دیکھا اور دوڑ کر نیچے اترا۔ اس نے اپنے دستے کو بکھیر دیا اور انہیں مختلف جگہوں پر جانے کو کہا۔ دوسری طرف سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صلیبی وہاں موجود تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سمندر چٹانوں کو کاٹ کر اندر جاتا تھا۔ اس پارٹی نے اپنی کشتی وہاں باندھی تھی۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ کشتی بہت بڑی تھی۔ لڑکیاں کشتی میں سوار ہو چکی تھیں۔ گھوڑے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اچانک ان پر تیر برسنے لگے۔ تمام کو ہلاک نہیں کرنا تھا، انہیں زندہ پکڑنا تھا۔ بہت سے کشتی میں کود گئے اور کشتی کو چپو مارنے لگے۔ پیچھے جو رہ گئے وہ تیروں کا نشانہ بن گئے تھے۔ کشتی میں جانے والوں کو للکارا گیا مگر وہ نہ رکے، مگر سمندر گہرا تھا۔ کشتی آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ ادھر سے اشارے پر تیر اندازوں نے کشتی پر تیر برسا دیے۔ چپوؤں کی حرکت بند ہو گئی۔ تیروں کی دوسری باڑ گئی، پھر تیسری اور چوتھی باڑ لاشوں میں پیوست ہو گئی۔ ان میں اب کوئی بھی زندہ نہ تھا۔ کشتی وہیں ڈولنے لگی۔ سمندر کی موجیں ساحل کی طرف آتی اور چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی۔ ذرا سی دیر میں کشتی ساحل پر واپس آ گئی۔ سواروں نے نیچے جا کر کشتی پکڑ لی۔ وہاں صرف لاشیں تھیں۔ لڑکیاں بھی مر چکی تھیں۔ بعض کو 2 تیر لگے تھے۔ کشتی کو باندھ دیا گیا اور سواروں کا دستہ محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیمپ دور نہیں تھا۔ میگنانا ماریوس قاہرہ کی ایک سرائے میں قیام پذیر تھا۔
उस सराय का एक हिस्सा आम और कमतर मुसाफिरों के लिए था और दूसरा हिस्सा उमरा और ऊंची हैसियत के मुसाफिरों के लिए। उस हिस्से में दौलतमंद ताजिर भी कयाम किया करते थे। उनके लिए शराब और नाचने गाने वालियां भी मुहैया की जाती थीं। मैग्नाना मार्यूस उसी खास हिस्से में ठहरा। मोबी को उसने अपनी बीवी बताया और अपने साथी को मोतमिद मुलाजिम। मोबी की खूबसूरती और जवानी ने सराय वालों पर मैग्नाना मार्यूस का रोब तारी कर दिया। ऐसी हसीन और जवान बीवी किसी बड़े दौलतमंद ही की हो सकती थी। सराय वालों ने उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी। मोबी ने अपने आप को मुसलमान जाहिर करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के घर और दफ्तर के मुताल्लिक मालूमात हासिल की। उसने ये भी मालूम कर लिया कि सुल्तान अय्यूबी ने सूडानियों को मुआफी दे दी है और सूडानी फौज तोड़ दी है। उसे ये भी पता चल गया कि सूडानी सालारों और कमानदारों वगैरह के हरम खाली कर दिए गए हैं और ये भी कि उन्हें ज़रई ज़मीनें दी जा रही हैं। ये मैग्नाना मार्यूस की गैर मामूली दलेरी थी या गैर मामूली हिमाकत कि उस मुल्क की जबान तक नहीं जानता था, फिर भी इतने खतरनाक मिशन पर आ गया था। उसे इस किस्म के कत्ल की और इतने बड़े रुतबे के इंसान तक रसाई हासिल करने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। वो ज़हनी लिहाज से इंतशार और खल्फिशार का मरीज था। फिर भी वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने आया, जिसके इर्द गिर्द मुहाफिजों का पूरा दस्ता मौजूद रहता। उसके दस्ते के कमांडर ने उसे कहा था कि तुम पागल हो, तुमने जितनी बातें की हैं उनमें मुझे जरा सी भी अक्ल की बू नहीं आई। बज़ाहिर मैग्नाना मार्यूस पागल ही था। ये एक तारीखी हकीकत है कि बड़े आदमियों को कत्ल करने वाले उमूमन पागल होते हैं। अगर पागल नहीं तो उनके ज़हनी तवाज़ुन में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। यही कैफियत इटली के उस सजा याफ्ता आदमी की थी। उसके पास एक हथियार ऐसा था जो ढाल का काम भी दे सकता था। ये थी मोबी। मोबी मिस्र की सिर्फ जबान ही नहीं जानती थी, बल्कि उसे और उसकी मरी हुई 6 साथी लड़कियों को मिस्री और अरबी मुसलमानों के रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन और दीगर माशरती ऊंच नीच के मुताल्लिक लंबे अरसे के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। वो मुसलमान मर्दों की नफ्सियात से भी वाकिफ थी, अदाकारी की माहिर थी और सबसे बड़ी खूबी ये कि वो मर्दों को उंगलियों पर नचाना और बवक्ते जरूरत अपना पूरा जिस्म नंगा करके किसी मर्द को पेश करना भी जानती थी। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि बंद कमरे में मैग्नाना मार्यूस, मोबी और उनके साथी ने क्या बातें की और क्या मंसूबा बनाया। अलबत्ता ऐसा सबूत पुरानी तहरीरों में मिलता है कि 3-4 रोज सराय में कयाम के बाद मैग्नाना मार्यूस बाहर निकला तो उसकी दाढ़ी धुली हुई थी। उसके चेहरे का रंग सूडानियों की तरह गहरा बादामी था, जो मसनूई हो सकता था लेकिन मसनूई लगता नहीं था। उसने मामूली किस्म का चुगा और सर पर मामूली किस्म का रुमाल और इमामा बांध रखा था। मोबी सर से पांव तक स्याह बुर्का नुमा लिबादे में थी और उसके चेहरे पर बारीक निकाब इस तरह पड़ा था कि होंठ और ठोड़ी ढकी हुई थी। पेशानी तक चेहरा नंगा था। पेशानी पर उसके भूरे रेशमी बाल पड़े हुए थे और उसका हुस्न ऐसा निखरा हुआ था कि राह जाते लोग रुक कर देखते थे। उनका साथी मामूली से लिबास में था, जिससे पता चलता था कि नौकर है। सराय के बाहर 2 निहायत आला नस्ल के घोड़े खड़े थे। ये सराय वालों ने मैग्नाना मार्यूस के लिए उजरत पर मंगवाए थे, क्योंकि उसने कहा था कि वो अपनी बीवी के साथ सैर के लिए जाना चाहता है। मैग्नाना मार्यूस और मोबी घोड़ों पर सवार हो गए और जब घोड़े चले तो उनका साथी नौकरों की तरह पीछे पीछे चल पड़ा। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने नाइबीन को सामने बिठाए सूडानियों के मुताल्लिक अहकामात दे रहा था। वो ये काम बहुत जल्दी खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि सुल्तान जंगी की भेजी हुई फौज मिस्र की नई फौज और वफादार सूडानियों को साथ मिलाकर एक फौज बनाएगा और फौरी तौर पर यरूशलेम पर चढ़ाई करेगा। बहिरा रोम की शिकस्त के बाद जबकि सुल्तान जंगी ने फ्रैंकों को भी शिकस्त दे दी थी, एक लंबे अरसे तक सलीबियों के संभलने का कोई इम्कान नहीं था। उनके संभलने से पहले ही सुल्तान अय्यूबी उनसे यरूशलेम छीन लेने का मंसूबा बना चुका था। उससे पहले वो सूडानियों को जमीनों पर आबाद कर देना चाहता था, ताकि खेती बाड़ी में उलझ जाएं और उनकी बगावत का इम्कान न रहे। नई फौज की तंजीमें और हजारहा सूडानियों को जमीनों पर आबाद करने का काम आसान नहीं था। इन दोनों कामों में खतरा ये था कि सुल्तान अय्यूबी की फौज और अपनी इंतजामिया में ऐसे आला अफसर मौजूद थे जो उसे मिस्र की अमारत के सरबराह की हैसियत से नहीं देख सकते थे। सूडानियों की फौज को तोड़कर भी सुल्तान अय्यूबी ने अपने खिलाफ खतरा पैदा कर लिया था। उस फौज के चंद एक आला हुकाम जिंदा थे। उन्होंने सुल्तान की इताअत कबूल कर ली थी, मगर अली बिन सुफियान की इंटेलिजेंस बता रही थी कि बगावत की राख में अभी कुछ चिंगारियां मौजूद हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये भी थी कि उन बागी सरबराहों को अपनी शिकस्त का इतना अफसोस नहीं था जितना सलीबियों की शिकस्त का गम है।
क्योंकि वो बगावत दब जाने के बाद भी सलीबियों से मदद लेना चाहते थे और मिस्र की इंतजामिया और फौज के 2-3 आला हुकाम को सूडानियों की शिकस्त का अफसोस था, क्योंकि वो आस लगाए बैठे थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मारा जाएगा या भाग जाएगा। ये ईमान फरोशों का टोला था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी का ईमान मजबूत था। उसने मुखालिफिन से वाकिफ होते हुए भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की, उनके साथ नरमी से और खुलूस से पेश आता रहा। किसी महफिल में उसने उनके खिलाफ कोई बात न की, और जब कभी उसने मातहतों से और फौज से खिताब किया तो ऐसे अल्फाज कभी न कहे कि मैं अपने मुखालिफिन को मजा चखा दूंगा। कभी धमकी आमेज या तंजिया अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अलबत्ता ऐसे अल्फाज अक्सर उसके मुंह से निकलते थे कि अगर किसी साथी को ईमान बेचता देखो तो उसे रोको, उसे याद दिलाओ कि वो मुसलमान है और उसके साथ मुसलमानों जैसा सलूक करो ताकि वो दुश्मन के असर से आजाद हो जाए। लेकिन दरपर्दा वो मुखालिफिन की सरगर्मियों से बाखबर रहता था। अली बिन सुफियान का महकमा बहुत ही ज्यादा मसरूफ हो गया था। सुल्तान अय्यूबी को ज़ेर ज़मीन सियासत की इत्तलाएं बाकायदगी से दी जा रही थीं। अब इस महकमे की जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं। मुहाफिजों और शुतरबानों के कत्ल की इत्तला भी काहिरा आ चुकी थी। इससे पहले जासूसों का गिरोह जिसमें लड़कियां भी थीं, मुहाफिजों से नामालूम अफराद ने आजाद करवा लिया था। इन दो वाकयात ने यह साबित कर दिया था कि मुल्क में सलीबी जासूस और छापामार मौजूद हैं, और ये भी जाहिर होता था कि उन्हें यहाँ के बाशिंदों की पुश्त पनाही और पनाह हासिल है। अभी ये इत्तला नहीं पहुंची थी कि छापामारों और लड़कियों को ऐन उस वक्त खत्म कर दिया गया है जब वो कश्ती में सवार हो रहे थे। छापामारों की सरगर्मियों को रोकने के लिए फौज के 2 दस्ते सारे इलाके में गश्त के लिए गुज़श्ता शाम रवाना कर दिए गए और इंटेलिजेंस के निजाम को और ज्यादा वसी कर दिया गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी कदरे परेशान भी था। वो क्या अज़्म लेकर मिस्र में आया था और अब सल्तनत इस्लामिया के इस्तेहकाम और वुसअत के लिए उसने क्या क्या मंसूबे बनाए थे, मगर उसके खिलाफ जमीन के ऊपर से भी और जमीन के नीचे से भी ऐसा तूफान उठा था कि उसके मंसूबे लरजने लगे थे। उसे परेशानी ये थी कि मुसलमान की तलवार मुसलमान की गर्दन पर लटक रही थी। ईमान का नीलाम होने लगा था। सल्तनत इस्लामिया की खिलाफत भी साजिशों के जाल में उलझकर साजिशों का हिस्सा और आलाए कार बन गई थी। जन और जर ने अरब की सरजमीन को हिला डाला था। सुल्तान अय्यूबी इससे भी बेखबर नहीं था कि उसे कत्ल करने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन इस पर वो कभी परेशान नहीं हुआ था। कहा करता था कि मेरी जान अल्लाह के हाथ में है, उसकी जाते बारी को जिस जमीन पर मेरा वजूद बेकार लगेगा तो मुझे उठा लेगा। लिहाजा उसने अपने तौर पर अपनी हिफाजत की कभी फिक्र नहीं की थी। ये तो उसकी फौजी इंतजामिया का बंदोबस्त था कि उसके गिर्द मुहाफिजों के दस्ते और इंटेलिजेंस के आदमी मौजूद रहते, और अली बिन सुफियान तो इस मामले में बहुत चौकस था। एक तो ये उसकी ड्यूटी थी, दूसरे ये कि वो सुल्तान अय्यूबी को अगर पैगंबर नहीं तो अपना पीरो मुर्शिद जरूर समझता था। उस रोज सुल्तान अय्यूबी नायबीन को अहकामात और हिदायत दे रहा था जब 2 घोड़े उसके मुहाफिज दस्ते की बनाई हुई हद पर रुके। उन्हें मुहाफिजों के कमांडर ने रोक लिया था। सवार मैग्नाना मारियूस और मोबी थे। वो घोड़ों से उतरे तो घोड़ों की बागें उनके साथी ने थाम ली। मोबी ने कमांडर से कहा कि वो अपने बाप को साथ लाई है, सुल्तान अय्यूबी से मिलना है। कमांडर ने मैग्नाना मारियूस से बात की और मुलाकात की वजह पूछी। मैग्नाना मारियूस ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो, वो ये जबान समझता ही नहीं था। मोबी ने अपना इस्लामी नाम बताया। उसने कमांडर से कहा, इससे बात करना बेकार है, ये गूंगा बहरा है। मुलाकात का मकसद हम सुल्तान को या उसके किसी बड़े अफसर को बताएंगे। अली बिन सुफियान बाहर टहल रहा था। उसने मैग्नाना मारियूस और मोबी को देखा तो उनके पास आ गया। उसने अस्सलाम वालेकुम कहा तो मोबी ने वालेकुम अस्सलाम कहा। कमांडर ने उसे बताया कि ये सुल्तान से मिलना चाहते हैं। अली बिन सुफियान ने मैग्नाना मारियूस से मुलाकात की वजह पूछी तो मोबी ने उसे भी कहा कि ये मेरा बाप है, गूंगा और बहरा है। अली बिन सुफियान ने उन्हें बताया कि सुल्तान अभी बहुत मसरूफ हैं, फारिग हो जाएंगे तो उनसे मुलाकात का वक्त लिया जाएगा। उसने कहा, आप मुलाकात का मकसद बताएं, हो सकता है आपका काम सुल्तान से मिले बगैर हो जाए। सुल्तान छोटी छोटी शिकायतों के लिए मुलाकात का वक्त नहीं निकाल सकते। मुतल्लिका महकमा अज खुद ही शिकायत रफा कर दिया करता है। मोबी ने कहा, क्या सुल्तान अय्यूबी इस्लाम की एक मजलूम बेटी की फरियाद सुनने के लिए वक्त नहीं निकाल सकेंगे? मुझे जो कुछ कहना है मैं वो उन्हीं से कहूंगी। अली बिन सुफियान ने कहा, मुझे बताए बगैर आप सुल्तान से नहीं मिल सकेंगी। मैं सुल्तान तक आपकी फरियाद पहुंचाऊंगा, वो जरूरी समझेंगे तो आपको अंदर बुला लेंगे। अली बिन सुफियान उन्हें अपने कमरे में ले गया। मोबी ने शुमाली इलाके के किसी कस्बे का नाम लेकर कहा, 2 साल गुजरे, सूडानी फौज वहां से गुजरी।
मैं भी लड़कियों के साथ फौज देखने के लिए बाहर आ गई। एक कमानदार ने अपना घोड़ा मोड़ा और मेरे पास आकर मेरा नाम पूछा। मैंने बताया तो उसने मेरे बाप को बुलाया, उसे परे ले जाकर कोई बात की। किसी ने कमानदार से कहा कि ये गूंगा और बहरा है। कमानदार चला गया। शाम के बाद 4 सूडानी फौजी हमारे घर आए और मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए और कमानदार के हवाले कर दिया। उसका नाम बालियान है। वो मुझे अपने साथ ले आया और हरम में रख लिया। उसके पास 4 और लड़कियां थीं। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ बाकायदा शादी कर ले, लेकिन उसने मुझे शादी के बगैर ही बीवी बनाए रखा। 2 साल उसने मुझे अपने पास रखा। सूडानी फौज ने बगावत की तो बालियान चला गया। मालूम नहीं मारा गया है या कैद में है। आपकी फौज उसके घर में आई और हम सब लड़कियों को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम सब आजाद हो। मैं अपने घर चली गई। मेरे बाप ने शादी करनी चाही तो सब ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि ये हरम की छोड़ी हुई हड्डी है। वहाँ लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। हम सराय में ठहरे हैं। सुना था कि सुल्तान सूडानियों को जमीनें और मकान दे रहे हैं। मुझे आप बालियान की दाश्ता या उसकी बीवी समझकर यहाँ जमीन और मकान दे दें ताकि मैं उस कस्बे से निकल आऊं, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी या घर से भागकर कहीं तवाइफ बन जाऊंगी। अली बिन सुफियान ने कहा, अगर आपको जमीन सुल्तान से मिले बगैर मिल जाए तो सुल्तान से मिलने की क्या जरूरत है? मोबी ने कहा, हाँ फिर भी मिलने की जरूरत है। इसे आप अकीदत भी कह सकते हैं। मैं सुल्तान को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उसकी सल्तनत में औरत खिलौना बनी हुई है। दौलतमंदों और हाकिमों के यहाँ शादी का रिवाज खत्म हो गया है। खुदा के लिए औरत की इस्मत को बचाओ और औरत की अजमत बहाल करो। सुल्तान से ये कहकर शायद मेरे दिल को सुकून आ जाए। मैग्नाना मार्यूस इस तरह खामोश बैठा रहा जैसे उसके कान में कोई बात नहीं पड़ रही। अली बिन सुफियान ने मोबी से कहा कि सुल्तान को इजलास से फारिग होने दें, फिर उनसे मुलाकात की इजाजत ली जाए। ये कहकर अली बिन सुफियान बाहर निकल गया। वो बहुत देर बाद आया और कहा कि वो सुल्तान से इजाजत लेने जा रहा है। वो सुल्तान अयूबी के कमरे में चला गया और खासी देर बाद आया। उसने मोबी से कहा कि अपने बाप को सुल्तान के पास ले जाओ। उसने उन्हें सुल्तान अयूबी का कमरा दिखा दिया। कमरे में दाखिल होने से पहले दोनों ने बाहर की तरफ देखा। वो गालिबन कत्ल के बाद वहां से निकलने का रास्ता देख रहे थे। सुल्तान कमरे में अकेला था। उसने दोनों को बिठाया और मोबी से पूछा, क्या तुम्हारा बाप पैदाइशी गूंगा और बहरा है? मोबी ने जवाब दिया, हाँ सुल्तान मोहतरम, ये इसका पैदाइशी नक्स है। सुल्तान अयूबी बैठा नहीं था, कमरे में टहलता रहा और बोला, मैंने तुम्हारी शिकायत और मुतालबा सुन लिया है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। मैं तुम्हें यहाँ जमीन भी दूंगा और मकान भी बनवा दूंगा। सुना है तुम कुछ और भी मुझसे कहना चाहती हो। मोबी ने कहा, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। आपको बता दिया गया होगा कि मेरे साथ कोई आदमी शादी नहीं करता। लोग मुझे हरम की छोड़ी हुई हड्डी, फाहिशा और बदकार कहते हैं और मेरे बाप को कहते हैं कि इसने बेटी बेच डाली है। आप मुझे जमीन और मकान तो दे देंगे, लेकिन मुझे एक खावंद की जरूरत है जो मेरी इज्जत की रखवाली करे। उसने झिझक कर कहा, मैं ऐसी बात कहने की जुर्रत नहीं कर सकती, लेकिन अपनी माँ की अर्जदाश्त आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आप अगर मेरी शादी नहीं करवा सकते तो मुझे अपने हरम में रख लें। आप मेरी उम्र, मेरी शक्ल सूरत और मेरा जिस्म देखें। क्या मैं आपके काबिल नहीं हूँ? ये कहकर उसने मैग्नाना मार्यूस के कंधे पर हाथ रखकर दूसरा हाथ अपने सीने पर रखा और सुल्तान अयूबी की तरफ इशारा किया। ये इशारा शायद पहले से तयशुदा था। मैग्नाना मार्यूस ने दोनों हाथ जोड़कर सुल्तान अयूबी की तरफ किए और फिर मोबी के हाथ पकड़कर सुल्तान अयूबी की तरफ बढ़ाए, जैसे वो ये कह रहा था कि मेरी बेटी को कबूल कर लो। सुल्तान अयूबी ने कहा, मेरा कोई हरम नहीं लड़की। मैं मुल्क से हरम, कहबा खाने और शराब खत्म कर रहा हूँ। बात करते करते उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और हाथ में उछालने लगा। उसने कहा, मैं औरत की इज्जत का मुहाफिज बनना चाहता हूँ। ये कहते कहते वो दोनों की पीठ पीछे चला गया और सिक्का हाथ से गिरा दिया। टन की आवाज आई तो मैग्नाना मार्यूस ने चौंक कर पीछे देखा और फिर फौरन ही सामने देखने लगा। सुल्तान अयूबी ने तेजी से अपने कमरबंद से 1 फुट लंबा खंजर निकालकर उसकी नोक मैग्नाना मार्यूस की गर्दन पर रख दी और मोबी से कहा, ये शख्स मेरी जबान नहीं समझता। इसे कहो कि अपने हाथ से अपना हथियार फेंक दे। इसने जरा सी पसोपेश की तो यहाँ से तुम दोनों की लाशें उठाई जाएंगी। मोबी की आंखें हैरत और खौफ से खुल गईं। उसने अदाकारी का कमाल दिखाने की कोशिश की और कहा, मेरे बाप को डरा धमका कर आप मुझ पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं? मैं तो खुद ही अपने आप को पेश कर रही हूँ। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुम जब महाज पर मेरे सामने आई थी तो तुम मेरी जबान नहीं बोलती थी। ये कहकर खंजर की नोक मैग्नाना मार्यूस की गर्दन पर रखे रखी। उसने कहा, क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ की जबान बोलने लगी हो? इसे कहो हथियार फौरन बाहर निकाल दे।
मोबी ने अपनी जबान में मैगनाना मार्यूस से कुछ कहा तो उसने चूहे के अंदर हाथ डालकर खंजर बाहर निकाला, जो उतना ही लंबा था जितना सुल्तान अय्यूबी का था। सुल्तान ने उसके हाथ से खंजर ले लिया और अपना खंजर उसकी गर्दन से हटाकर कहा, बाकी 6 लड़कियां कहाँ हैं? मोबी ने कांपती हुई आवाज में कहा, आपने मुझे पहचानने में गलती की है, मेरे साथ और कोई लड़की नहीं है। आप कौन सी 6 लड़कियों की बात कर रहे हैं? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मुझे खुदा ने आंखें दी हैं और खुदा ने मुझे ज़हन भी दिया है जिसमें वो चेहरे नक्श हो जाते हैं जिन्हें एक बार आंख देख लेती है। तुम्हारा चेहरा जो आधा निकाब में है मैंने पहले भी देखा है। तुम्हें और तुम्हारे उस साथी को खुदा ने इतना नाकिस ज़हन दिया है कि जिस काम के लिए तुम आए थे तुम उस काबिल नहीं। सराय में तुम दोनों खावंद और बीवी थे, यहाँ आकर तुम बाप और बेटी बन गए, मगर तुम हो कुछ भी नहीं। और तुम्हारा एक साथी बाहर घोड़ों के पास खड़ा है, वो तुम्हारा नौकर नहीं, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है।